خبروں کی تفصیلات سب سے پہلے بات کریں کمیشن کا چکر یا معاملہ کچھ اور الائڈ اسپتال فیصل آباد کی انتظامیہ نگران حکومت کا حکم ماننے سے انکاری پارکنگ ٹھیکہ فیصل آباد پارکنگ کمیٹی کو دینے کے بجائے پرائیویٹ افراد کے سپرد کر دیا۔ مریضوں اور تیمارداروں سے الائڈ اسپتال میں پارکنگ مافیا زائد فیس وصول کر رہا تھا، جس پر نگران حکومت نے نوٹس لیا تھا اور 30 جنوری کو الائڈ اسپتال انتظامیہ کو پارکنگ کا ٹھیکہ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کو دینے کے احکامات دیے گئے تھے، جسے ہسپتال انتظامیہ نے ماننے سے انکار کر دیا اور پارکنگ کا ٹھیکہ پرائیویٹ افراد کو دے دیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے ٹھیکے کی نیلامی منسوخ کرنے کی بجائے 2 فروری کو نیلامی کروا دی اور 15 فروری کو جگہ عازم علی نامی اسلام نگر کے رہائشی شہری کے سپرد کر دی۔ ایم ایس الائڈ اسپتال ڈاکٹر ارشد علی چیمہ نے کہا کہ ٹھیکہ دینے کے معاملات اجلاس میں طے ہوئے، ابھی تک منٹس آف میٹنگ موصول نہیں ہوئے، جیسے ہی موصول ہوں گے ٹھیکہ منسوخ کر کے فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ حکومت کو بھی خط لکھا ہے کہ تحریری طور پر ٹھیکہ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کو دیے جانے کی اجازت دی جائے۔ لیٹر بھی ایک ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ ڈائریکشن دی جائیں اس میٹنگ کے ریگارڈنگ کہ اب ہم نے یہ کانٹریکٹ جو ہے نا فیصل آباد کار پارکنگ کو دینا ہے یا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ ڈائریکشن کے بغیر میں خود سے نہیں دے سکتا۔ ٹھیکہ دار نے پارکنگ کا نظام سنبھالتے ہی مریضوں اور تیمارداروں سے زائد پارکنگ فیس وصولی کا کام شروع کر دیا ہے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ ادارہ شماریات کی جانب سے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 2.89% اضافہ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 38.42% ہو گئی ہے۔ ادارہ شماریات کی جانب سے ہفتہ وار مہنگائی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 2.89% اضافہ ہوا۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 38.42% ہو گئی۔ سب سے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی 39.41% ہو گئی۔ ایک ہفتے میں پیٹرول 20 روپے 74 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ ڈیزل 17 روپے 11 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ رواں ہفتے گھی 43 روپے 96 پیسے فی کلو مہنگا کر دیا گیا۔ ایک ہفتے میں کیلے 11 روپے 53 پیسے فی درجن مہنگے ہوئے۔ رواں ہفتے چکن 31 روپے 11 پیسے فی کلو مہنگا ہوا۔ چاول 4 روپے 50 پیسے، سادہ بریڈ 3 روپے 6 پیسے مہنگی ہوئی۔ دال ماش، دہی، مٹن، بیف، چینی اور دال مسور بھی مہنگی ہوئی۔ سگریٹ کی ڈبی 7 ہفتے 5 اشیاء سستی اور 12 کی قیمتیں برقرار رہیں۔ فیصل آباد میں محکمہ فوڈ کی نااہلی عام شہریوں کو سستے آٹے کی فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکی۔ رجسٹر چکی مالکان نے پیسے جمع کرا دیے مگر کنٹرول ریٹ پر گندم نہ مل سکی۔ فیصل آباد میں سستے آٹے کا حصول خواب بن گیا۔ چکی مالکان کا کہنا تھا کہ حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ پیسے جمع کرائیں، انہیں کنٹرول ریٹ پر گندم فراہم کر دی جائے گی، مگر ہفتے سے زائد کا وقت گزر جانے کے بعد بھی کوئی اقدامات نہیں ہو سکے۔ ہم نے بینکوں میں پیسے جمع کرا دیے، ہائی اتھارٹی کے سگنیچر اوپر ہیں، پیسے جمع کرا دیے اور ابھی تک انہوں نے ہمیں گندم نہیں دی۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کہتا ہے کہ ڈی سی او صاحب ریٹ تعین کریں گے، ڈی سی او صاحب کہتے ہیں کہ لاہور والے ریٹ تعین کریں گے۔ چکی مالکان کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر چکر لگا رہے ہیں، اگر محکمہ فوڈ تعاون نہیں کرے گا تو مارکیٹ میں آٹے کی قیمت کم کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ آج 17 تاریخ ہو گئی ہے، انہوں نے ابھی تک ہمیں گندم ریلیز نہیں کی۔ ہم نے بینک میں پیسے بھی جمع کرائے ہوئے ہیں، یہ ثبوت ہے چلان فارم، تو یہ ہمیں گندم نہیں جاری کر رہا ہے۔ چکی مالکان کا موقف ہے کہ اگر محکمہ فوڈ تعاون کرے تو آٹے کی قیمت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں یوٹیلیٹی سٹورز میں سستا گھی نایاب ہو گیا، شہری سستا آٹا خریدنے کے لیے خوار ہونے لگے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں یوٹیلٹی سٹور پر سستی اشیاء کے لیے آنے والے شہریوں کی پریشانی کم نہ ہو سکی۔ یوٹیلٹی سٹور پر سستی اشیاء کی کمی معمول کی بات ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے عام گھی 500 روپے فی کلو سے زیادہ ہے، جبکہ یوٹیلٹی سٹور پر ملنے والے گھی کی قیمت 375 روپے فی کلو ہے، لیکن یہ ملتا قسمت والوں کو ہے۔ یوٹیلٹی سٹور پر آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ گھی کا حصول مشکل ہو گیا ہے، کئی بار سٹور کے چکر لگانا پڑتے ہیں، جبکہ آٹا بھی یوٹیلٹی سٹور پر نایاب ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے دور میں حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنا بھول گئی ہے۔ مہنگائی نے پہلے ہی غریب عوام کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ اب 3 دن سے مسلسل چکر لگا رہے ہیں، یہاں پہ گھی مل نہیں رہا، ہمیں خوار ہو رہے ہیں، آٹا بھی نہیں ہے، اور یوٹیلیٹی سٹور پہ دیکھا جائے تو 375 روپے ریٹ ہے فی کلو کا، لیکن وہ بھی 3 دن ہو گئے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ پیٹرول تو ویسے مل بھی نہیں رہا اور ریٹ بھی اس کا اتنا ہو گیا ہے کہ غریب بندے کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ FIA نے مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کو طلب کر لیا ہے۔ اعجاز الحق کے خلاف 1.8 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات جاری ہیں۔
एजाज उल हक को 21 फरवरी को दिन 2 बजे FIA दफ्तर फैसलाबाद में तलब किया गया है। आपको बता रहे कि FIA ने मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज उल हक को तलब कर लिया है। एजाज उल हक के खिलाफ 1.8 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हाशिर बड़ाज से। हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA की जानिब से मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह है एजाज उल हक, उनको 1.8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर जो है वो FIA की जानिब से तलब कर लिया गया। और एजाज उल हक की जानिब से FIA को इस हवाले से FIA की जानिब से एजाज उल हक को जो तलबी का नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है। एजाज उल हक के खिलाफ जो है वो आमदन से ज़ायद असासे बनाने पर जो है वो इल्ज़ाम है, जिसके खिलाफ तहकीकात जो है वो इनके खिलाफ जारी है। इस हवाले से जबकि ये केस जो है एजाज उल हक का, इस हवाले से इससे कबल जो है नैब देख रही थी बात, ये केस को नैब की जानिब से जो है FIA को ट्रांसफर कर दिया गया। और अब FIA की JIT इस हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर तहकीकात करेगी। और 21 फरवरी को जो है वो फैसलाबाद FIA ऑफिस के अंदर जो है दिन 2 बजे एजाज उल हक को तलब किया गया। इस हवाले से उनको जो नोटिस जारी किया गया उनमें FIA की जानिब से ये कहा गया है कि वो इस हवाले से सवालात जो इस केस के हवाले से उनके पास जो सबूत मौजूद हैं वो लेकर जो है वो FIA के दफ्तर जो है वो पहुंचे इस हवाले से। जबकि इससे कबल ये जो केस है, यही केस नैब इसकी तहकीकात कर रहा था और बाद में नैब की जानिब से ये जो 1.8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो केस है ये FIA को ट्रांसफर किया गया। और इस हवाले से एक JIT बनाई गई और JIT की जानिब से अब JIT जो है वो अपना काम उसमें शुरू कर दिया। और इस हवाले से एजाज उल हक को जो है वो 21 फरवरी को फैसलाबाद FIA दफ्तर के अंदर जो है वो तलब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया हाशिर आपका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या ज़ाती सवारी, सफ़र जेब पर भारी। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ शहरियों की जेब पर डाल दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। फैसलाबाद के मुख्तलिफ बस अड्डों के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का कहना था कि सरगोदा से फैसलाबाद का 500 किराया था, लेकिन अब 550 रुपए अदा किया। फैसलाबाद से पेशावर का किराया 1500 था, अब 1700 से 1800 रुपए ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टर का कहना था कि जिन ट्रांसपोर्टर्स को नोटिफिकेशन मौसूल हो गया है उन्होंने किरायों में इजाफा कर दिया है। कई ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा नहीं किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जाती सवारी, सफर जेब पर भारी। जंग में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 10 से 12% बढ़ गए। मुसाफिर परेशानी का शिकार हो गए। आज तो गरीब आदमी ना आटा खरीद सकता है, ना किराया पे कर सकता है, ना ही घी खरीद सकता है। खुदारा इन्हें वैसे ही जिंदा दरगोर कर दो। किराया बढ़ गया है, पहले हम 1100 दे के जाते थे, अब 1150 हो गया है। आम आदमी के लिए इसके लिए ज़्यादा मसाइल हैं। हम जैसे थोड़े से जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो फिर भी पहले अपनी गाड़ी पे भी चले जाते हैं कि चार दोस्त मिलकर चले जाते हैं। जंग से फैसलाबाद का किराया 300 से बढ़कर 320 रुपए कर दिया गया। जंग से लाहौर का किराया 1200 से बढ़कर 1300 कर दिया गया। C कैटेगरी की सर्विस में भी किराया 1150 रुपए है। मुल्तान का किराया 900 से बढ़कर 980 रुपए, लिया का किराया 460 रुपए कर दिया गया। जंग से रावलपिंडी का किराया 1700 रुपए से 1850 रुपए हो गया। गोजरा का किराया 200 से बढ़कर 240 रुपए, टोबा का 180 से 220 रुपए हो गया। शोरकोट का किराया 300 से 330 रुपए कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर्स ने भी फी स्टॉप किराए में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। होंडा अटलस कार पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। होंडा अटलस कार ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 2,50,000 से 5,50,000 रुपए तक का इजाफा किया। हुंडा अटलस कार पाकिस्तान ने एक दफा फिर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुंडा अटलस कार ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 2,50,000 से 5,50,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। सिटी मैनुअल 1.2 की कीमत 2.5 लाख रुपए इजाफे से 45,79,000 रुपए हो गई। सिटी मॉडल 1.2 CVT 2,60,000 रुपए इजाफे से 47,29,000 रुपए की हो गई। सिटी 1.5 CVT 3 लाख रुपए इजाफे से 54,19,000 रुपए की हो गई। BRV CVT 3 लाख रुपए इजाफे से 59,49,000 रुपए की हो गई। सिविक 1.5 CVT 4.5 लाख रुपए इजाफे से 77,79,000 रुपए पर पहुंच गई। सिविक ओरियल 1.5 CVT 5 लाख रुपए इजाफे से 80,99,000 रुपए की हो गई। सिविक मॉडल RS 4,50,000 रुपए इजाफे से 91,99,000 रुपए पर पहुंच गई। कंपनी अलामिया में कहा गया है कि तब्दील होते कारोबारी हालात के मनफी असरात हो रहे हैं। सेल्स टैक्स में इजाफे से भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ी है। धागे की क्वालिटी तिल्ले का रेट भी बढ़ गया। 280 रुपए से बढ़कर फी कोन 340 रुपए की हो गई। दूसरी जानिब 30 PP थ्रेड का फी बैग 5,000 रुपए इजाफे के बाद 27,500 रुपए का हो गया। धागे की किस्म तिल्ले ने भी कीमत की ऊंची उड़ान भर ली। फी कोन 280 रुपए से बढ़कर 340 रुपए की हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक 18 फरवरी से होगा। कीमतें बढ़ने पर सनतकार परेशान हैं। कहते हैं डॉलर में कमी के बावजूद कीमतों में इजाफा काबिल मुजम्मत है। ये आपने मेटालिक जिसे आप तिल्ला बोलते हैं
ये आपने दिखाया 280 रुपए की कौन थी 360 रुपए की कर दी गई है, 340 की सॉरी, 60 रुपए ये बढ़ा दी गई है। और साथ एक जुल्म और भी कर रहे हैं कि इसका वजन और इसका खजाना वो भी कम करते जा रहे हैं। इधर 30 PP थ्रेड का फी बैग 5,000 रुपए इजाफे के बाद 27,500 रुपए का हो गया। सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन ने कहा, काम का सीजन है, ऑर्डर की भरमार है, मगर धागा मार्केट में मिल ही नहीं रहा। पार्टी के साथ रेट डन कर लेते हैं मौजूदा हालात में, मौजूदा रेट पे हर चीज का, लेकिन जब तक वो माल आता है बनने के लिए, बन के जाता है, उस वक्त तक 10 से 15% जो है वो रॉ मटेरियल बढ़ चुका होता है। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है, हम काम करके भी अपना नुकसान कर रहे हैं। पोलिएस्टर फाइबर की कीमत 345 रुपए, पीवी जान 28,500 रुपए, काटन 40 39,600 रुपए, काटन 60 सिंगल 63,000, 40 स्टेपल 39,500, पीसी 36,000 रुपए हो गई। अभी तक वो एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं नजर आ रही। और फैब्रिक वाली साइड पे भी जो कपड़े की बाइंग है ना, वो बिलाल भाई हमें लग रहा है कि शायद 50% खत्म हो चुकी है। अभी तक बाइंग आ ही नहीं रही, जिसकी वजह से पेमेंट्स नहीं आ रही। पेमेंट्स की तंगी बहुत ज्यादा है बाजार में। खामाल की तमाम क्वालिटीज की कीमतें बढ़कर बुलंद सतह पर पहुंच गईं। सनतकार कहते हैं कि लोकल मार्केट में खामाल से तैयारी तक 3-4 जगह सेल्स टैक्स देने से कपड़ा मजीद महंगा होगा। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद के 10 रजिस्टर्ड टैक्स गुजार कंपनीज की जानिब से शॉर्ट लेवी की मद में 2 करोड़ से जायद के टैक्स चोरी पकड़ी गई है। फैसलाबाद के 10 रजिस्टर्ड टैक्स गुजार कंपनियों की जानिब से शॉर्ट लेवी की मद में 2 करोड़ से जायद की टैक्स चोरी पकड़ी गई। टैक्स चोरी माली साल 2019-20 में की गई। FBR की ऑडिट रिपोर्ट में चोरी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद परवेज ने कौमी खजाने को 27 लाख जबकि सलीम अहमद 22 लाख का नुकसान पहुँचाया। सैयद अजहर ने 41 लाख रुपए, आमिर बिलाल 15 लाख की टैक्स चोरी की। फतेह मोहम्मद 10 लाख रुपए, AB इंटरप्राइजेज ने 14 लाख टैक्स की चोरी की। डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी ने फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम को रिकवरी और तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद की तहसीलों में 10 वेटनरी अस्पतालों की तामीर और मरम्मत का फैसला। महकमा बिल्डिंग्स ने बहाली का तखमीना लागत महकमा लाइव स्टॉक को इरसाल कर दिया। फैसलाबाद की तहसीलों के 10 वेटनरी अस्पतालों की तामीर और मरम्मत का फैसला। महकमा बिल्डिंग ने बहाली का तखमीना लागत महकमा लाइव स्टॉक को इरसाल कर दिया। तामीर और मरम्मत के कामों पर 8 करोड़ से जायद लागत आएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी के चिन्योट के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके। दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। गैर मियारी और मिलावटी 660 लीटर दूध मौका पर तल्फ किया गया। दूध बरदार 65 गाड़ियों में मौजूद दूध को स्कैन मशीन से चेक किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस मुनीर अहमद के मुताबिक 3 गाड़ियों को जुर्माने आयद किए गए हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला जारी है। PP 110 से PTI रहनुमा बशारत डोगर की जानिब से जुमरा रोड से मिल्लत चौक तक रैली निकाली गई। इमरान खान की हिदायत पर कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए उम्मीदवार बराए PP 110 हाजी बिशारत अली डोगर ने रैली निकाली। रैली जुमरा रोड बिशारत डोगर के दफ्तर से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों कारकुन शरीक हुए। रैली शेखुपुरा रोड से होती हुई मिल्लत चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल शाही समेत दीगर रहनुमा भी रैली में शरीक। बिशारत डोगर का कहना था, मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम को मसाइल की दलदल में धकेल दिया है। इमरान खान साहब हमारे जो कप्तान है, उन्होंने इस कौम के लिए जो किया है ना, आगे अगर आज इमरान की काज पे अवाम निकली है ना, तो सिर्फ मेरिट पे निकली है कि अवाम चाहती है कि हमें हकीकी आज़ादी मिले। अवाम चाहती है कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो है हम पे हुक्मरानी करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। शुरुका से खिताब में हाजी बिशारत डोगर ने कहा, मुल्की मिसाइल की बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। अगर मुनसिफाना और कबल अज वक्त इंतखाबात करवा दिए जाएं तो मुल्की सियासत में इस्तेहकाम आएगा और नई मुंतखब होने वाली क़यादत मुल्की मिसाइल बेहतर अंदाज में हल कर सकेगी। जो इन लोगों ने मुल्क का हाल कर दिया है, मैं इंशाअल्लाह ताला पुर उम्मीद हूँ कि हमारा कप्तान इमरान खान और उसकी टीम इस मुल्क को संभालेंगे और इंशाअल्लाह ताला दिन रात मेहनत करके इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करेंगे। PTI रहनुमा ने कहा, इमरान खान कौमी लीडर हैं और वो मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अमैर अजमत, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह की तहसील पीरमाल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना शफीक खान की जानिब से महंगाई मुकाओ रैली का इनेकाद किया गया।
पीर महल में पीटीआई के रहनुमा राणा शफीक खान की रिहाइशगाह पर महंगाई मुकाओ मार्च के हवाले से जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर भर की कसीर आबादी ने शिरकत की। जलसा में तहरीक इंसाफ के रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम, मुमताज दौलताना, चौधरी वकार, हाजी मोहम्मद सादिक ने भी शिरकत की। राणा शफीक खान का कहना था कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है, हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। आपने महंगाई का जिन हमारे पे सवार कर दिया है, गरीब आदमी मर रहा है, उसके पास रोटी खाने को है कुछ है, सारा दिन मेहनत 500-700 कमाता है, जब शाम को घर जाता है तो 1000-1500 का घर का बिल होता है, रोटी 25-30 रुपए की हो गई है, वो बेचारा रोटी खाए ज्यादा भी नहीं वो खा सकते। अवामी जलसा के बाद पीटीआई के कारकुनान मोटरसाइकिल और कारों पर सवार होकर रैली की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए अल्लाहू चौक के मुकाम पर पहुंचे। उन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। इस मौके पर फिजा पार्टी तरानों से गूंजती रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राणा शफीक खान का कहना था कि खान का सिपाही हूँ, पुरअमन एहतजाज करता रहूंगा। मैंने आपके साथ ही जीना मरना है, मैंने यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान से भागना नहीं है, इस शहर से भागना नहीं है, मैंने आप में ही जीना है, आप में ही मरना है, आपकी ही जंग लड़नी है। शुरा का कहना था कि इंतखाबात में इमरान खान को वाजिया अक्सरियत हासिल होगी, आइंदा हुकूमत पीटीआई की होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने सरकारी स्कूलों में 8वीं जमात तक के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। स्कूल सतह पर सालाना इम्तहानात 10 से 25 मार्च तक लिए जाएंगे। तमाम स्कूलों में स्कूल बेस्ड इम्तहानात लिए जाएंगे, जिनकी बुनियादी पर तलबा को अगले क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। स्कूलों में 31 मार्च को तलबा को रिजल्ट कार्ड भी जारी करके सेशन का अख्ताम किया जाएगा। और अब अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया। सजाए मौत के 2 मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म सुना दिया। दोनों मुल्जिमान मोहम्मद इखलाक और जहूर अहमद को जमील और अली अहमद के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म दिया गया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही ने मुल्जिमान को सजाए मौत और दीगर सजाओं का हुक्म सुनाया था। मुल्जिमान के खिलाफ 2012 में थाना मिलत टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ था। फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर नजीर एवार ने मंशियात केस का फैसला सुना दिया। मुल्जिम अब्दुल गफ्फार को 4 साल कैद 8000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दे दिया गया। मुल्जिम के खिलाफ 9C के तहत गुज़श्ता साल थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुल्जिम से 2200 ग्राम पोस्ट बरामद हुई थी। जुर्म साबित होने पर अदालत ने सजा और जुर्माने का हुक्म दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिम 4 माह 15 दिन मजीद कैद भुगतेगा। मुल्जिम एडिशनल जज के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने का हक रखता है। फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला में जश्न बहारा मनाया जाएगा। पंजाब कल्चर डे की बेतकरीबात मुनाकिद होंगी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के अहकामात पर डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें डिविजनल सतह के अफसरान ने भी शिरकत की। कमिश्नर सिलवत सईद ने कहा कि जश्न बहारा और पंजाब कल्चर डे की भी तकरीबात के लिए इंतजाम कर रहे हैं। दी सिटी स्कूल चनाब कैंपस फैसलाबाद में ओपन डे का इनेकाद, वालिदैन को तालीमी सरगर्मियों बारे बताया गया। द सिटी स्कूल चनाब कैंपस फैसलाबाद में ओपन डे मुनक्किद किया गया, जिसका थीम स्पेस रखा गया। इस मौका पर तलबा की बड़ी तादाद ने खलाबाज तर्ज के ड्रेसेस पहनकर शिरकत की। वालिदैन के लिए तमाम क्लासेस में होने वाली सरगर्मियों के हवाले से डेमो भी पेश किया गया। बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। इन्हें सिर्फ पढ़ाई के अलावा नहीं, बाकी भी चीज़ों में बताया जाता है किस तरह से है सब कुछ। और बहुत अच्छा लगा है यहाँ बच्चों की परफॉर्मेंसेस देख के, उनकी एक्टिविटीज़ देख के। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम रट्टा सिस्टम या इस तरह चीज़ों पे नहीं ला सकते। उनको क्रिएटिविटी अच्छी लगती है कि वो चीज़ें देखें फिर उनको उस हिसाब से करें, तो इनका ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तलबा और वालिदैन के लिए तालीमी सरगर्मियों से मुतल्लिक स्टॉल्स भी लगाए गए। बच्चों को खेल खेल में सिखाने की अमली मशकें भी करवाई गई। प्रिंसिपल इमरान शाहिद का कहना था कि अब सीखने के लिए किताब और क्लासरूम्स तक महदूद रहना काफी नहीं, बल्कि तलबा को मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक्किद करके ज्यादा सिखाया जा सकता है। किसी भी स्कूल लाइफ के अंदर बच्चों की तालीम के साथ साथ किताबों से हट के बच्चों को जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो होता है बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है बच्चे की लाइफ के ऊपर। और जो रियल लर्निंग होती है, मैं समझता हूँ कि वो एक्टिविटीज़ के थ्रू ही हो पाती है। हेड मिस्ट्रेस शाइस्ता बुखारी और दीगर असातिज़ा का कहना था कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से तलबा सीखने के अमल में खूब दिलचस्पी लेते हैं और रट्टा सिस्टम से जान छूट जाती है। बच्चों को सिखाना और कुछ वो करें और सीखें। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि सिर्फ किताबों से या कॉपियों से बच्चे नहीं सीखते हैं,
جب بچے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو وہ پھر لائف لانگ لرننگ ہوتی ہے، اور چونکہ ہم ارلی ایئرز میں اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، آج ہم نے اپنے پورے جو ارلی ایئرز کے اسٹوڈنٹس تھے ان کی پارٹیسپیشن کروائی ہے. سو 100% بچے نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈفرینٹ ایریاز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. والدین کی بڑی تعداد نے اوپن ڈے میں شرکت کی اور اساتذہ سے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں بارے آگاہی حاصل کی. کیمرہ مین جنید کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. دوسری جانب بچوں میں لیڈرشپ کی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے اصلاح پبلک اسکول فیصل آباد میں الیکشن کا انعقاد کیا گیا. بچوں میں لیڈرشپ کی صلاحیتیں پیدا کرنے اور الیکشن سے متعلق آگاہی دینے کے لیے اصلاح پبلک اسکول فیصل آباد میں طلبہ کے مابین الیکشن کروائے گئے. ہر کلاس سے ہیڈ بوائے اور ہیڈ گرل کے لیے امیدواروں میں مقابلہ کرایا گیا، جس میں ہر کلاس سے 2 سے زیادہ امیدوار سامنے آئے جنہوں نے ووٹ مانگتے ہوئے مہم بھی چلائی. میں نے گرل گائیڈ کے لیے حصہ لیا اور ہم نے الیکشن کی کمپین بھی چلائی تھی اور بچوں سے ووٹ مانگے بھی، ہم بچوں کو ووٹ دیں گے بھی. ابھی تو بچے ووٹ دے رہے ہیں، جب وہ ووٹ دیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون جیتا. الیکشن ہو رہے ہیں ہمارے اسکول میں، مجھے الیکشن بہت پسند ہے، اس لیے میں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے. ہمیں انہوں نے ایک سلپ بنا کے دی ہے، اب ہم نے نا ان کے اوپر مہر لگا کے اپنے باکس میں ڈال دینی ہے اور اس میں سے چوائس کرا جائے گا کہ کون گرل گائیڈ بنتا ہے اور کون بوائے کا بنتا ہے. پرنسپل اظہر بشیر کا کہنا تھا کہ بچوں کو لیڈرشپ کی طرف لانے کے لیے بچوں میں الیکشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ہم نے، ہمارے اساتذہ نے سکھایا ہے، بچوں نے سیکھا ہے، ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے وہ کمپیٹ بھی کیا ہے، لیکن اچھی لینگویج یوز کرتے ہوئے، اچھی بات کرتے ہوئے، اور جو ہے نا یہ میسیج اس سے کہ ہم نے ان کو لرننگ کروائی ہے کہ یہ جمہوری ملکوں میں کیسے ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ جب بڑے ہوں گے تو لیڈر بنیں گے. کلاس وائز طلبہ نے ووٹ کا حق استعمال کیا. طلبہ کے لیے الیکشن میں پولنگ ایجنٹ، پریزائڈنگ سٹاف اور ووٹ ڈالنے تک کے تمام مراحل کا انتظام کیا گیا. کیمرہ مین جنید کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.